तो आज हम देखेंगे कि या मेरी आवाज सबको आ रही है कि शिवांश को ही सिर्फ नहीं आ रही है? हेलो, जैसे आ गई, मैंने सेटिंग कर लिया। सर आ रही है। अभी इज इट प्रॉपर्ली ऑडिबल यस ना? सर। यस सर। ओके, कूल। सो या आज सिर्फ छह लोग ही हैं। आई होप ये छह लोग रुकें। चलो 5 हो गए कहते ही। I don't know why people are not joining. Let's leave it. So we are going to learn JavaScript's application. I mean, how to use JavaScript with HTML. How to include a JavaScript code in HTML. There are multiple ways. How one can use browser dev tools in order to debug their JavaScript code and understand the HTML part, right? And obviously how HTML DOM works. What is HTML DOM? What are the different JavaScript events? Can we create our own custom events? And the later part, how to manipulate DOM through JavaScript, right? अच्छा, DOM क्या है? How many of you know what is a DOM? HTML DOM. सर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो डॉक्यूमेंट Yeah, ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन होता है, एक डॉम I क्वेरी mean, बनती है उसके हिसाब से, मतलब जैसे एचटीएमएल के टैग्स होते हैं, कुछ होता है सर उसका। okay. So पता है क्या दिक्कत क्या है? The main problem is people learn JavaScript, people learn HTML as well, but what people don't understand the interface, मतलब JavaScript और HTML का जो interface है, which is DOM, वो लोगों को नहीं पता चलता। तो this is very अब ये situation पता है क्या? This is not only with you guys. Even after working for 2-3 years, the situation is same, right? Uh, so today we will break this, right? We will understand how a DOM works and what it is. मतलब just full form of something doesn't explain that thing clearly, right? So document object model, अगर this is not enough. So let's understand firstly how to include JavaScript. So there are multiple ways, right? So by inclusion, I mean you can do something of this sort. Okay, before that, I'll be just throwing a icebreaker on you guys. You know, can you write such a function which will sum these numbers? And if yes, what this technique called? Any one of you know? Hello, Kriti. Do you know how can you write such a function which will take parameters like this and will sum up? नो सर। No, sir. Shivansh, Abhi. Okay. So this is called function नो सर। chaining. We will learn it later. Let's leave it for now. But remember this term. This is a very important part of it, and this is possible because of closure in JavaScript, right? Closure is the part of the advanced session. We'll learn lexical scoping, closure, IIFE there. Okay, cool. So the today's session is how to include JavaScript, right? So there are multiple ways. One is the inline way. Another is you can use the embedded way. In the same way uh, as you use CSS. And third one is external. And you can in external you can use single or multiple such files. Okay. So for this, I would rather go to this.
let me create a plain HTML file. So how do we create one, right? Just HTML tags, and then we just put some head tag, right? And then some body tag. Save this file as mm, mhm, right. So this is a typical structure of a HTML file, right? There's some head section, some body section, and you can write your code here. Let's say I write a button here. Uh, I'm going to implement the click me functionality. So just ignore this, how this on click and or anything working. Mm, yes. Uh, no, no. Mhm. You see, so here what we did, we wrote a simple HTML document, right? An element, a button element, in which there's something this stuff. Let's forget what it is. Um, I'll cover in the JS events part. This is a event on click event, as the name suggests. You're clicking on it, and whenever it is getting clicked, just execute this section. If you see, this is our JavaScript code, right? You can console something, even you can line multiple lines. Let's say I created a variable, some variable, right? I can even do the semicolon and then I can just print that variable too. This will work as is. See, so you can write any amount of code here by using the semicolon. But is this code readable? No. Can I extend this code? No. Can I do some, can I put complex code here? No. So since this this way of writing JavaScript code is in line, right? You are writing the code in line. This is one line, and you're writing the code inside that line. This is called inline inline inclusion of JavaScript. You just included JavaScript inline, right? Is it clear now? I am expecting your plus ones. Okay. So just one suggestion to everyone. Whenever you hear any new term, right? जैसे कि in line, तो in line का literal meaning क्या होता है? In line. समझ में आएगा एक लाइन में, right? तो इसका मतलब if there is a line, you would like to write that JavaScript code inside that line, right? In the same way, embedded का मतलब क्या होता है कि एक जगह कोई चीज है, मैं उसके उसके उसमें वो चीज मैं डाल दिया, एम्बेड कर दिया, राइट? जैसे जैसे लेट से हमारा मोबाइल फोन है, राइट? हमने उसके अंदर अभी स्पीकर्स उसके अंदर एम्बेडेड हैं, राइट? उसी पूरे मोबाइल के केस में, तो दैट इज कॉल्ड एम्बेड। अभी अगर हमें एम्बेडेड प्रोग्राम लिखना होता, तो सेम सेम अगर हमको लेट से यही फीचर एम्बेडेड में लिखना होता, आई वुड डू व्हाट, I will just create that click handler,
will come here inside the script tag. Remember the script tag. It is really important. Without this, it will not work. Right? This is really important. Now I can indent it properly. I can like write complex code here, but till an extent. एक लिमिट तक ही हम यहाँ लिख पाएंगे. ठीक है, अभी इसका आउटपुट देखते हैं. The same output. This arrangement is called embedded inclusion of JavaScript. आपने इसको स्क्रिप्ट टैग में एम्बेड कर दिया. अब आपका ये HTML कोड अलग हो गया और आपका जावास्क्रिप्ट कोड हेड सेक्शन में हो गया. थोड़ी बेटर क्लैरिटी आ गई, राइट? आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं. जैसे अगर आप इस बटन के साथ कोई भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं. इस बटन का कलर बदल सकते हैं, इस बटन को का साइज बदल सकते हैं, कोई भी CSS प्रॉपर्टी बदल सकते हैं. वही होता है डॉम मैनिपुलेशन. मैनिपुलेशन मतलब होता है किसी चीज को बदल देना. वो हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे. तो यहाँ तक समझ में आया कि हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं. अब जैसे जैसे ये स्क्रिप्ट इंक्लूड होगी तो यहाँ से ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी, राइट? And this will work. Okay, you can, I would love to make this as a function. I don't, as a click handler, right? And I'll put it here. So whenever this click handler is getting called, okay, I'll be doing this. Cool. And if I, okay, पैरेलली हम ये भी समझते हैं कि डेव टूल्स कैसे यूज करते हैं. तो ये डेव टूल्स होता है. जस्ट राइट क्लिक ऑन इट, गो टू इंस्पेक्ट एंड द डेव टूल्स कम अप. ये आपके ब्राउजर में होगा. क्रोम का डेव टूल बहुत अच्छा है, मतलब डेवलपर टूल. जो भी आप वहाँ कोड लिखते हो, यू कैन सी दैट कोड हियर. अच्छा, ये अभी यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो बिकॉज आई एम नॉट सेविंग इट हियर. अभी आई थिंक दिस इज फाइन. ओके, आई विल हैव टू कॉल दिस मेथड. दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग हाउ इट इज रनिंग बिकॉज आई वाज नॉट सेविंग दैट मेथड. Yep. See, whatever code you have written here, you can see under this elements section, right? Elements में आप पूरा का पूरा element देख सकते हो. अभी देखो आप, HTML टैग है, हेड है, हेड के अंदर स्क्रिप्ट है, वो मेथड है, और ये आपका वो एलिमेंट है. कंसोल के अंदर आपके पास वो चीजें, यू नो, जस्ट अ टर्मिनल. आप यहाँ पे चीजों को कंसोल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं. यहाँ पे इनफैक्ट कोई भी वैलिड जावास्क्रिप्ट कोड भी लिख सकते हैं. तो ये एलिमेंट्स टैब है, ये कंसोल टैब है. सोर्सेज एलिमेंट्स क्या है? जब आपका इंटरप्रेट हो गया, इंटरप्रेट होने के बाद कैसा ये डॉम दिख रहा है. लेकिन जो आपका सोर्स कोड है ना, वो ये. अगर आप ये देखोगे, दिस इज सोर्स कोड. ये बिल्कुल एज इज आपका जैसे यू नो यहाँ है, वो ये है आपका. ये एज इज सोर्स में यहाँ दिखेगा. अब डिफरेंस क्या है एलिमेंट्स और सोर्सेज के बीच में? कि एलिमेंट्स उसका इंटरप्रेटेड वर्जन है. एलिमेंट मतलब मैं इसे कहूंगा ये इसका डॉम है. दिस इज डॉम. इंटरप्रेटेड वाला और ये मतलब इसका सोर्स है, राइट? तो यहाँ पे ये इंटरप्रेटेड वैल्यूज आएंगी. ये अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. व्हाट डज दिस मीन इंटरप्रेटेड वैल्यू. कर लेते थे मैं यहाँ पे और चीजों फिर को डिक्लेयर डिबग कर कर, देते थे, लेकिन वो जो इंटरप्रेटर रहता था सॉरी, उसका मतलब वेरिएबल ऊपर आ जाता था जो हम लोग इनिशियलाइज करते थे. होस्टिंग नहीं. Shivansh, Yes, sir. Shivansh, stop yourself. You're going in completely wrong way. होस्टिंग वो जावास्क्रिप्ट तक लिमिटेड है. आज हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं जावास्क्रिप्ट कैसे इंटरैक्ट करता है HTML से. तो अभी ना उस नहीं. वो कॉन्सेप्ट, वो जो आपने होस्टिंग का नाम लिया ना, वो उसकी बाउंड्री ये है. बस ये इतने दूर के अंदर ही हो सकता है. मतलब जहाँ पे स्क्रिप्ट आएगा, राइट? जावास्क्रिप्ट उसके बाहर तो आएगी नहीं. उसके बाहर क्या आता है? ये है HTML, राइट? द स्क्रिप्ट टैग के अंदर छोड़ दो इसको, बाकी सब HTML है. और ये है जावास्क्रिप्ट. अब जावास्क्रिप्ट और HTML कैसे, मतलब हाउ कैन जावास्क्रिप्ट टॉक टू HTML? इसको हम समझते हैं डॉम से, राइट? देखो ऐसे समझो, डॉम क्या होता है कि
देखो अगर तुम्हें डॉम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना सबको, ट्रस्ट मी, तुम्हें लाइफ में कोई भी लाइब्रेरी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। डॉम मतलब तुमने जावास्क्रिप्ट तुम प्रो हो गए, लेकिन डॉम ना एक अलग ही चीज है, अलग ही दुनिया है, राइट। डॉम डॉम को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब आपको ऐसा कोड लिखना है जो डॉम मैनिपुलेट करता है। और मैं अभी सबको एक्सरसाइज भी दूंगा वो डॉम मैनिपुलेशन वाला कोड लिखने का। वो बहुत मतलब उससे आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा ये कैसे मैनिपुलेट करते हैं। यस क्यों? तो जावास्क्रिप्ट इज वेरी गुड, लेकिन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हम सिर्फ हेलो वर्ल्ड या एबीसीडी का प्रोग्राम लिखने के लिए तो सीखते नहीं है, उसका तो एप्लीकेशन होगा, राइट। वो एप्लीकेशन क्या है? वो एप्लीकेशन है कि जावास्क्रिप्ट HTML को मैनिपुलेट करता है, क्योंकि यूजर को क्या दिखता है? जो आपने HTML CSS से लिखा है, जावास्क्रिप्ट नहीं दिखती ना। जावास्क्रिप्ट आपके बिहेवियर को डिसाइड करती है। मतलब उस जैसे ये बटन है, अगर मैं इस पे जावास्क्रिप्ट नहीं लगाऊंगा तो मैं ये बटन दिख रहा है अच्छा दिखा दूंगा, मैं CSS से इसको बहुत अच्छा ब्यूटीफुली दिखा सकता हूँ, लेकिन ये बटन के क्लिक पे क्या बिहेवियर होगा वो किससे कंट्रोल होगा? से डिफाइन कर देगा। जावास्क्रिप्ट से। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट के अलावा वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। इतना समझो, HTML HTML आपको वो बॉडी है, एक मशीन है की बॉडी है। CSS आपका उस बॉडी को ब्यूटीफुल कर बना देगा, और जावास्क्रिप्ट उस बॉडी की सोल है, राइट। जैसे अगर आपकी बॉडी की बात करें तो HTML इज स्केलेटन, वो कंकाल तंत्र है पूरा का पूरा। CSS जो आप ऊपर आपने वो कपड़े पहने हुए हैं, आपने मेकअप लगा रखा है, दैट इज CSS, क्योंकि वो पूरा का पूरा ब्यूटिफिकेशन आपने उसी से कर रखा है। और जावास्क्रिप्ट क्या है? जो इंटरनल आपका पूरा सिस्टम है, नो सर। जो आपके हर बॉडी पार्ट्स को ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है। तीनों के बिना बॉडी इज कंप्लीटली अधूरी, राइट। देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट बॉडी, इज देयर। आप देखो, बात आप तो एक पर्सन से करते हो, उस पर्सन में HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों हैं। अब देखो अगर कोई भी एक डेवलपर UI डेवलपर है जो कि पर्सन की बॉडी बना रहा है, अब वो बॉडी में अगर एक भी चीज मिसिंग है या एक ही भी चीज खराब है तो उसको कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा। अगर लेट से जावास्क्रिप्ट ही नहीं है उसमें, तो बॉडी मतलब डेड है, वो कुछ नहीं कर सकती, भले वो कितनी खूबसूरत हो या कितनी वाइड हो, कितनी बढ़िया उसका स्केलेटन हो। लेकिन अगर उसमें स्केलेटन ही नहीं है तो बॉडी ही नहीं होगा। मतलब अगर आप HTML नहीं लिखते तो जावास्क्रिप्ट कुछ नहीं कर सकता। एक्सेप्शनल्स आर देयर, क्योंकि अब जावास्क्रिप्ट नोड.js की तरह भी यूज होता है, तो बिना बॉडी के भी HTML के भी चलता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन CSS नहीं है तो तुम उस बॉडी से बात नहीं करना चाहोगे। अगर कोई बंदा बहुत गंदा दिख रहा है या बहुत ही ज्यादा अनहाइजेनिक है, तो अब जैसे ये बटन बहुत अनहाइजेनिक है, अगर मैं इस बटन को थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाऊं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? सिंपली रन टाइम में मैं इसका पूरा का पूरा देखो 3-4 मैं CSS लगाऊंगा और ये कितना खूबसूरत बन जाएगा। एक तो मुझे इसकी पैडिंग नहीं अच्छी लग रही है, तो आई विल जस्ट पुट सम पैडिंग अच्छी सी। एक इसका फॉन्ट नहीं अच्छा लग रहा है, तो आई विल पुट सम अच्छा सा फॉन्ट। एक इसका देखो, अभी ना मैं तुम्हें डेव टूल्स भी साथ साथ सिखा रहा हूँ कि CSS डेव टूल्स कैसे यूज करते हैं ये स्टाइल्स वाले के अंदर। कूल। तो यहाँ से तुम ऐसे CSS उठा के और ये एग्जामिन करके चला भी सकते हो। आई होप तुम सबको ये बात पता हो। ठीक है, मैं इसका कलर सेट करूंगा। ठीक है, देखो ये बेहतर है कि जो पहले था वो बेहतर था। डेफिनेटली ये बेहतर है, जबकि हमने सिर्फ 5 CSS लिखी है, राइट। विदाउट CSS दिस वाज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। सी, तो how did you manage this? Through CSS. The beautification part has been managed by CSS, और it is very important because आप जितने भी अच्छे एप्लीकेशंस यूज कर रहे होगे उनका UI बहुत अच्छा होगा।
बिकॉज ऑफ CSS एंड UI, मतलब जो दिख रहा है आपको, और यूजर एक्सपीरियंस जिसे UX कहते हैं। तो UX मतलब जो आपका बिहेवियर है वो कैसे कंट्रोल होता है, वो आपके जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल होता है, राइट? तो दिस बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। तो समझ पाया कि HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS का क्या कंट्रीब्यूशन है, कैसे इस दोनों के साथ इंटरेक्ट करता है। सबको क्लियर हुआ ये? यस तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तीनों में से अगर एक भी नहीं है तो कुछ ना कुछ मेजर या माइनर इम्पैक्ट जरूर आएगा आपके एंड प्रोडक्ट पे, राइट? ओके, कूल। सो आई टोल्ड यू हाउ टू यूज जावास्क्रिप्ट एज एम्बेडेड हियर। तो यहाँ पे एम्बेडेड हमने यूज कर लिया, राइट? लेकिन किसी के मन में क्वेश्चन है, अभी भी तो हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो कहीं इनलाइन भी तो हुआ। अगर मैं ये जो हाइलाइटेड सेक्शन है इसको हटाना चाहूँ और पूरा का पूरा बस यहीं से चलाना चाहूँ, तो कैसे चलाऊंगा? सर डॉम से इसे कोई आईडी या क्लास देके डॉक्यूमेंट सर डॉट ऑन गेट क्लिक पे एलिमेंट बाय आईडी। क्लास यूज किया है क्लास, उसके बाद फिर स्क्रिप्ट में उसका फंक्शन में क्लास यूज करके फंक्शन को एग्जीक्यूट करा रहा है। राइट, ओके। यहाँ पे 2-3 सोल्यूशन आ रहे हैं। एक भाई ने बोला कि ऐड आईडी एंड सिलेक्ट बाय इट, ठीक है। एक ने बोला कि ऐड क्लास एंड अगेन सेलेक्ट बाय इट, ठीक है। और कोई सोल्यूशन? चलो मेजरली इतना। अच्छा ठीक है, चलो मैं ऐड कर देता हूँ आईडी या क्लास, और मैं सेलेक्ट भी कर लेता हूँ। एक मैं तुम्हें आईडी से दिखाता हूँ सिंपल। तो आई एम रिमूविंग इट, ठीक है। I'm not sure event listeners कैसे करते हैं. Let me pull it. I've forgotten actually. Attach on click event. Basically event listeners. Okay. अच्छा, just get the element and attach that. Cool. I'm going to put my button. Yep. And then I'm gonna save it. Right? स्क्रिप्ट टैग नीचे यूज कर लेंगे। अच्छा, अब बताओ ये एरर क्यों आया? चलो मैं कोड पे वापस जाता हूँ। एरर देख लिया सबने कि बोल रहा है कि इसका नहीं मिला इसको ऑन क्लिक। और ये एरर क्यों आया, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? ओके, और कोई तरीका? अच्छा, ये बात कितनों को समझ में आई कि स्क्रिप्ट टैग नीचे यूज कर लेंगे एंड इट विल वर्क? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? No one? Okay, so yeah, that is one way of solving it. Just use script tag below, I mean in the body, so you can do this as well, and also just you can cut and put it here also. I mean script tag can be written anywhere, but the ideal place is head section. And when we use external JS, we try not to go to head section because of this reason. इस समय क्या होता है, अब जैसे ये HTML जब पार्स होता है ना, जब आपका ये ब्राउजर इसको पार्स करता है, तो ये जैसे ही हेड टैग पे आ रहा था ये स्क्रिप्ट टैग, ये कोड चल जा रहा था, राइट? दिस कोड
कोडिंग सीक्वेंस, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, राइट। ये ऊपर था तो ये चल जा रहा था। ये डॉक्यूमेंट में, मतलब जो आपका डॉम है उसमें बोल रहा था डॉक्यूमेंट डॉट गेट दैट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि ये एलिमेंट है, लेकिन उस समय तक वो प्रेजेंट नहीं था क्योंकि ये ऊपर था। सी, ये यहाँ पे इस समय प्रेजेंट नहीं है, राइट, इस टाइम पे, वो तो बाद में आएगा, तो इस वजह से ये नहीं हुआ। अगर जब मैं इसे नीचे कर दूंगा, सी, इट वुड वर्क। नो, नो नो, सर शायद इसमें डॉट वैल्यू लगानी पड़ेगी ऑन क्लिक के पहले। सर ऑन सॉरी, क्लिक इवेंट के पहले डॉट वैल्यू लगानी पड़ेगी। नहीं नहीं, हाँ। अरे ये अगेन इट इज द सेम प्रॉब्लम। सो बेसिकली दिस प्रॉब्लम गेट सॉल्व बाय यूजिंग ऑन लोड। जिसने jQuery यूज किया उसको तुम्हें डॉक्यूमेंट डॉट रेडी मिलता है ना, वो रेडी इसीलिए यूज किया जाता है सो दैट यू कैन अटैच योर इवेंट्स व्हेन द डॉक्यूमेंट इज रेडी। अभी ये डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, ये इसको मिल नहीं पाया है, इस वजह से ये कोडिंग सीक्वेंस में ये दिक्कत कर रहा है। तुम ये सिंपल इसको डेफर कर दो बाय यूजिंग सेट टाइम आउट। ब्राउजर रिफ्रेश कर लीजिए एक बार। अब ये कैसे काम करेगा वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। ये आप, सर मैंने आपने इसको ब्राउजर सिंक से डेफर कनेक्ट कर किया है दिया। क्या? सी, नहीं। समथिंग इज ऑफ यार, मेरी फाइल सेव नहीं हो रही है, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, सर वो ब्राउजर रिफ्रेश करके देखिए। नहीं नहीं, मैंने सेव ही किया, ब्राउजर रिफ्रेश है ब्रदर, क्योंकि यहाँ पे कोड दिख रहा है ना। आई होप दिस शुड हैव वर्कड। बैड डे। जस्ट अ मिनट ना, विंडो डॉट, I mean this is we will have to do it in, oh, okay, this is why it fails. अच्छा, they are suggesting just wait for this event. Okay, let's wait, इसको भी करके देखते हैं, क्योंकि इशू उसी का है कि डॉक्यूमेंट, वो ना डॉक्यूमेंट रेडी नहीं हुआ है, क्योंकि वो पार्स कर रहा है और तब तक तुम्हारा ये कोड चल जा रहा है। मैं सेव किया ना, सर एक बार कोड कॉपी पेस्ट कर दीजिए चैट पे। still getting that error. Am I doing some stupidity? It's strange. What is wrong? Okay. No, this is really strange. सर डॉक टाइप लगा के देखिए एक बार। Uh, something is off. आपने केवल HTML किया था ना, एक्सक्लेमेशन मार्क वाला वो करके डॉक टाइप HTML करते तो HTML5 हो जाता वो। Sorry, क्या? ओ अच्छा, हाँ मुझे कुछ उसी का इशू लग रहा है वो।
यार ये मतलब दिस शुड हैव, नहीं अभी भी कुछ नहीं हुआ। दिस शुड हैव स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्क। क्योंकि अगर ये कोड हम लेट से ये करते हैं वो जस्ट इन कंसोल, हाँ वी अगेन गेट नो वन यार। अरे व्हाट इज रॉन्ग विद दिस, इसका मतलब कुछ और गलती है। सर डॉट इनर एचटीएमएल भी तो यूज करना होता है सर। तो सर वो तो आपकी एलिमेंट पे प्रॉपर्टी है ना, वो आप एलिमेंट ही नहीं मिल रहा है। हाँ, समझ गया, माय बैड। एंड मैं तो स्टूपिड हूँ, सबके तुम सब भी स्टूपिड ही हो बराबर रेंज में। ये हैश नहीं होता ना इसमें, क्योंकि ऑलरेडी एलिमेंट है ये। जे क्वेरी सिंटैक्स इज किलिंग मी। अभी देखो, सॉरी ये कीज अलग है यार। अभी ये दिस शुड वर्क। सी ऑन क्लिक हैंडलर, क्लिक हैंडलर। अभी अगर मैं लेट्स से डॉक्यूमेंट डॉट, सॉरी ऑन क्लिक इज नॉट मेथड, कुछ और मेथड होता है, मतलब दैट वर्क राइट, इट इज नॉट एन इशू नाउ। अच्छा ये ऑन क्लिक ऐसे होता है क्या, छोटे में होता है क्या? जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है तो प्लीज ध्यान रखना इस चीज का। यस ठीक है। ये सिंटेक्स का इशू था, ये यहाँ पे हैश नहीं होता, माय बैड। ओके सो नाउ दिस वर्क राइट। अब ये एक अलग तरीका। अब यहाँ पे देखो ना, अगर ये स्क्रिप्ट टैग कहीं ना कहीं तुम्हें दिख रही है कि ये कोड बिल्कुल डीकपल हो चुका है, और यहाँ पे देयर इज नो जावास्क्रिप्ट नाउ राइट। अगर हम इस पोर्शन को, इफ वी ट्राई टू रिमूव दिस पोर्शन फ्रॉम हियर and we put it somewhere in any external file, right? Let's just let me type external JavaScript. एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। See, now I can just include this using src tag, right? Yep, cool. Now see, अब धीरे धीरे ये देखो पूरा का पूरा डीकपल हो चुका है। ये मैनर कहलाता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट इंक्लूजन। देखो नाउ वी हैव इंक्लूडेड जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नली, पूरा का पूरा डीकपल हो चुका है। आपके देखो इस पेज में कोई जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं है राइट, वहां पे बस आपने एक स्क्रिप्ट यूज किया और ये इंक्लूड हो गया। लेकिन पॉइंट ये है, आपका जावास्क्रिप्ट अलग फाइल में, एचटीएमएल अलग फाइल में, स्टिल रन टाइम में हमने उनको उसको इंक्लूड कर दिया। अब ये जावास्क्रिप्ट को ये पूरा का पूरा एलिमेंट समझ कैसे आया? देखो ये जो कोड है डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाई आईडी, ये जो कोड है अगर मैं हम माई बटन करके लिखता हूँ, जो अभी हेमंत ने बोला कि इनर एचटीएमएल क्या करते हैं वो बताता हूँ। इनर एचटीएमएल क्या है, तो यहाँ पे मैंने किया, इसको पूरा का पूरा बटन एज एन एलिमेंट मिल गया। अगर लेट्स से बटन मिल गया, अब ये बटन क्या है, एक ऑब्जेक्ट टाइप का एलिमेंट है राइट। ये इसको कैसे मिला ये बताए कोई? ये इसको ऐसे मिला डॉम के थ्रू। डॉम क्या है? आपका जो ब्राउजर का पार्सर होता है ना, वो आपके HTML को रीड करके उसको पास कर देता है राइट, और उसको ट्री स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट मॉडल उसका बनाता है। अब जैसे अगर मैं इसको बोलूं तो ये पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट है, उसमें एक की होगी HTML, एक ऑब्जेक्ट होगा HTML। HTML के अंदर दो ऑब्जेक्ट होते हैं, हेड एंड बॉडी। अगर मैं यहाँ पे हेड भी लिख देता हूँ लेट्स से, राइट, हेड एंड बॉडी।
अगर यहाँ देखो HTML के अंदर दो एलिमेंट है, हेड एंड बॉडी, और ये हम इसका ऑब्जेक्ट मॉडलिंग समझते हैं। ये मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, ये भी दो, ये नहीं चलेगा क्या इसमें? आई थिंक नहीं। सी देखो, मैंने डॉम व्यू किया और यहाँ पे एक HTML है, HTML के अंदर एक हेड है, हेड के अंदर अभी कुछ नहीं है फिलहाल, फिर उसके पैरेलल में बॉडी है। अगर तुम इसे ट्री स्ट्रक्चर की तरह देख रहे हो तो ट्री स्ट्रक्चर में जैसे बाइनरी ट्री पढ़ी होगी लोगों ने, राइट? ये पूरा का पूरा समझो बाइनरी तो नहीं, क्योंकि बाइनरी ट्री में तो दो ही नोड होते हैं उसके चाइल्ड के, मतलब आपके दो चाइल्ड नोड होंगे, लेकिन इसमें मल्टीपल हो सकते हैं, राइट? तो आपके टॉप पे, आपका मतलब ट्री के टॉप पे क्या होगा? डॉक्यूमेंट होगा। डॉक्यूमेंट के अंदर एक HTML एक की होगी, एक चाइल्ड होगा। HTML के अंदर मिनिमम हेड या बॉडी तो होगा ही होगा, राइट? और बॉडी के अंदर फिर ऐसे बढ़ता चला जाता है। आप इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो कि किस तरीके से ये आता है? ऐसे से बनते जाते हैं, राइट? इसमें सेम रिलेशन होता है जो आपका नॉर्मल ट्री में रिलेशन होता है। जैसे हेड का पेरेंट कौन है? HTML। HTML के कितने चिल्ड्रन? दो चिल्ड्रन। बॉडी का पेरेंट कौन है? HTML। बॉडी का सिबलिंग कौन है? हेड, राइट? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप सिलेक्टर लिखते हैं तो आपको रिलेशन समझना होता है कि आप डॉक्यूमेंट से, मतलब डॉक्यूमेंट मतलब आप रूट लेवल पे बैठे हो, उस ट्री का रूट एकदम टॉप लेवल है, वहां से आप कैसे एक्सेस कर रहे हो उस चाइल्ड नोड को, राइट? अगर लेट्स से बॉडी के कितने अभी चिल्ड्रन है? दो चिल्ड्रन है, एक बटन टैग और एक स्क्रिप्ट टैग। तो इसको जो बोलते हैं रन टाइम में, इसको एलिमेंट बोलते हैं। एक एलिमेंट के अंदर उसका चाइल्ड एलिमेंट, मल्टीपल चाइल्ड एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे यहाँ बटन है, बटन के ऊपर एक मैं की बना सकता हूँ, राइट? दिस इज द पैराग्राफ। अब दो, दिस इज, ये तीन एलिमेंट हो गए इसके। पी का सिबलिंग कितने हैं? दो। बटन का सिबलिंग कौन है? पी। इस तरीके से ये पूरा का पूरा तुम्हारे दिमाग में इस तरीके से पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो मॉडल है वो बिल्कुल समझ में आना चाहिए। As soon as you see the document, वो तुम्हें वहां समझ में आना चाहिए। ये प्लेन तुम्हारी HTML फाइल थी, लेकिन जब ब्राउजर को मिला तो ब्राउजर ने उसको क्या किया? उसने डॉम में कन्वर्ट कर दिया, राइट? कैसे डॉम में कन्वर्ट किया? ये देखो यहाँ पे, ये इसका रनिंग, मैंने सेव नहीं किया फिर से। ये इसमें रनिंग देखो डॉम में कन्वर्ट कर दिया है। डॉम क्या है? उस HTML फाइल को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। इसमें टॉप ऑब्जेक्ट क्या है? HTML। उस ऑब्जेक्ट के दो एट्रीब्यूट्स हैं, हेड एंड बॉडी। हेड एंड बॉडी के में बॉडी के तीन एट्रीब्यूट हैं अभी। वो कैसे हमें पता चलेगा? देखो, अगर तुम सिंपल डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हो, देखो डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर पूरा का पूरा चीज प्रिंट होती चली जा रही है, ठीक है? अगर मैं डॉक्यूमेंट जो वो है, क्या नाम है, अगर मैं इसकी इम्प्लीमेंट वो डिटेल्स देखना चाहूँ तो मैं इसको console.log नहीं console.dir करूंगा। ये देखो, अब ये डिफरेंस समझ में आया ना कि कंसोल लॉग में ऐसे इसका टेक्स्ट प्रिंट हो रहा था, अब dir में उसकी इंफॉर्मेशन प्रिंट होती है कि उस ऑब्जेक्ट में एक्चुअल में क्या क्या है, उस डॉक्यूमेंट का URL क्या है, राइट? उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या, मतलब डॉक्यूमेंट में डायरेक्ट मिल रहा है, देख लो इतनी चीजें हैं डॉक्यूमेंट, इतने मेथड्स, सब कुछ, ये सारी चीजें अवेलेबल है। आपको इतने इवेंट्स अवेलेबल हैं। अब जब डॉक्यूमेंट में अवेलेबल होगा तो इनहेरिटेंस के हिसाब से वो सारे जितने भी वो है ना इवेंट्स हैं, जो जावास्क्रिप्ट इवेंट्स कहे जाते हैं, ये सारे इवेंट्स आपको नीचे मतलब अपने चाइल्ड एलिमेंट में मिलते जाएंगे। जैसे अगर पेरेंट को पता है कि ऑन क्लिक क्या मेथड है, तो वो चाइल्ड को भी मिल जाएगा, राइट? इनहेरिटेंस के द्वारा।
ये जब पेरेंट अपने सारे सर प्रॉपर्टीज इस को अपने चाइल्ड को प्रोटो देता वीटो ये रहता है, सब क्या होता तो है? इसमें डॉक्यूमेंट जो है पेरेंट एलिमेंट है और सारे उसके चाइल्ड एलिमेंट है, राइट। इसीलिए देखो इसमें गेट एलिमेंट बाय मेथड आईडी भी एक मेथड होगा, खोजो कहीं ना कहीं दिख जाएगा, या तो इसके प्रोटो में होगा, अगर इसमें नहीं होगा तो वेयर इट इज, अच्छा इसके मिल प्रोटो में गया। होगा क्योंकि वो आपका नेटिव होता है। देखो अब इसके प्रोटो में नहीं होगा तो उसके प्रोटो में होगा, यू नो, क्योंकि मतलब ये डॉक्यूमेंट किसी, हाँ ये थोड़ा एडवांस जावास्क्रिप्ट में मैं तुम लोग को सिखाऊंगा कि एक्चुअल में इनका काम कैसे। तो जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस जो होती है वो प्रोटोटिपिकल इनहेरिटेंस होती है, इसके नहीं तो इसके प्रोटो में होगा, किसी न किसी के प्रोटो में अवश्य होगा वो, इस वजह से वो तुम्हें वहां मिल रहा है। देखो ये मिल गया ना हमको, तो वो केवल ऊपर जाना ना। प्रोटोटिपिकल चेन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, अगर मैं एक घर का एग्जांपल लूं कि लेट से कोई फेस्टिवल है, ठीक है, तुम अपने पापा से पैसे मांगो, पापा ने मना कर दिया, तो तुम दादा के पास जाते हो, मतलब जिनके जिनके घर में दादा रहते हैं उनसे मांगते हो, राइट। तो इन द सेम वे आप, अगर आपके पेरेंट्स नहीं सुनते तो आप ग्रैंड पेरेंट के पास जाते हो। जैसे अगर आपका कोई मुकदमा है, अगर सिविल कोर्ट में नहीं हुआ तो आप सिविल कोर्ट से ऊपर वाली कोर्ट में जाते हो, फिर हाई कोर्ट जाते हो, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हो एट द एंड। इस केस में सुप्रीम कोर्ट कौन है? डॉक्यूमेंट, राइट। डॉक्यूमेंट मतलब एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट, ये जो दिख रहा है आपको, और बाकी सुप्रीम कोर्ट के नीचे आपका जो मेन है ना, वो है बॉडी। जो चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो मतलब कहीं ना कहीं आप खोजोगे तो आपके प्रोटोटिपिकल चेन में, मतलब आपके एंसेस्टर्स में कहीं ना कहीं वो मिलेंगे, और वो खोजने का रास्ता आपके प्रोटोटिपिकल चेन से होके गुजरता है। मतलब इसके प्रोटो में देखो, इसके प्रोटो में नहीं मिली तो उस अपने पेरेंट के प्रोटो में देखो, उनके नहीं मिली तो उनके भी प्रोटो में देखो, इस तरीके से मिल जाएगी आपको, कहीं ना कहीं मिल जाएगी, राइट। और फाइनली फाइनली ये सारी चीजें कहाँ मिलती है? विंडो में मिलती है। तो एक विंडो मतलब एक टैब। यस अगर सर, दिख आपसे सकता क्वेश्चन है पूछिए क्या मैं एक एक विंडो के विंडो अंदर में। मल्टीपल डॉक्यूमेंट चला सकता हूँ, तो इसका क्या आंसर होगा? बताओ। विंडो मतलब टैब। जैसे देखो ये एक टैब खुला है ना, तो एक विंडो है, राइट। अगर मैं लेट से यहाँ पे इन चीजों को क्लियर आउट करता हूँ और मैं विंडो प्रिंट करता हूँ, 10-20 मिनट बाद करेंगे। फाइनली सारी विंडो है, राइट। देखो विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट दिख रहा है, तो ये डॉक्यूमेंट है। जब मैं डॉक्यूमेंट पे हॉवर कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा ब्लू हो जा रहा है, मतलब सिंस वो सिलेक्ट कर रहा है। अगर मैं डॉक्यूमेंट को खोल देता हूँ तो डॉक्यूमेंट के अंदर देखो बॉडी होगा, बॉडी को हॉवर किया तो देखो ये ब्लू हो गया। तो डेव टूल्स का यूज करके तुम बहुत कुछ स्टडी कर सकते हो। इसमें देखो इसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, इसके चाइल्ड नोट्स कितने हैं, डॉक्यूमेंट का चाइल्ड नोट कितना होता है, सिर्फ एचटीएमएल ही होता है, राइट। एक ही लेंथ मिलेगा। HTML के अंदर देखोगे, अगर HTML खोल दिया, देखो यहाँ पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पे पॉइंट कर दिया कि HTML है। अगर मैं वापस जाऊँ और मैं खोलता हूँ इसको, HTML के अंदर आऊँगा तो ये HTML पे देखो इतने एट्रीब्यूट्स हैं। किसी एलिमेंट पे कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं वो तुम्हें हमेशा दिख जाएंगे यहाँ पे। HTML के अंदर जो उसका फर्स्ट चाइल्ड क्या है, वो हेड है, राइट। इसके चिल्ड्रन को देखो कितने चिल्ड्रन है यहाँ कहीं ना कहीं चिल्ड्रन होगा, चाइल्ड लिस्ट, ये रहा, ठीक है। हेड एंड बॉडी देख रहे हो, दो दो उसके चिल्ड्रन है। बॉडी के अंदर जाओ, बॉडी के अंदर तुम्हें 3 चिल्ड्रन मिलेंगे, और ये बॉडी का एट्रीब्यूट्स है। तो बॉडी के अंदर इसमें आईडी भी कहीं ना कहीं होगा, स्प्रे क्योंकि कहाँ हमने है? आईडी बॉडी के आईडी नहीं लगाया, आईडी नल लगाया है। तो आपको भी लेके चले हाँ, जाएंगे तब। हेमंत कह रहा था ना इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल क्या बताता है? करंट जो एलिमेंट है उसके अंदर तुमने क्या क्या लिखा हुआ है, मतलब उसके अंदर कितना एचटीएमएल लिखा हुआ वो बताता है। इनर टेक्स्ट, उसके अंदर कितना टेक्स्ट है वो खोज के वो बताता है। अब वो बॉडी के अंदर जाते हैं, हम उसके चिल्ड्रन देखते हैं। सबके पास लैपटॉप है, सबके पास ब्राउजर है, ये खोलो, एक कोई भी डॉक्यूमेंट बना लो और सिंपल से स्टडी करो, तुम्हें ये समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा ये जो डॉम है वो होता क्या है। इसकी बुकिश डेफिनेशन पढ़ के कुछ नहीं होगा कि डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, ये नहीं। डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट मॉडल होता है एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन होता क्या है,
तो तुम देख रहे हो ये पूरा का पूरा एक जावास्क्रिप्ट की तरह, जैसे जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है, उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, मेथड्स होते हैं, वही है ना। तो बेसिकली ब्राउजर ने क्या किया, आपकी प्लेन HTML फाइल को रीड किया और उसको एक रन टाइम में एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और उसका और बाय डिफॉल्ट उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज उसने खुद डाली है, तुमने नहीं क्रिएट की है। ये चाइल्ड बीजी कलर बेस URI ये सब तुमने नहीं क्लिक करी है। क्लास नेम, अब तुम क्लास दोगे ना तो यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगी। तुम Yes, sir, आ रही इसको है। पढ़ के ना, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो तुम क्या कर सकते हो, तुम अपना खुद का सिलेक्टर लिख सकते हो, डॉम मैनिपुलेशन कर सकते हो, वो सब अभी हम करके देखेंगे। तो चिल्ड्रन में गया, 3 चिल्ड्रन है, पहला P था, तो वो सीक्वेंस भी मेंटेन है। फिर ये है, देखो मैं यहाँ पे हॉवर कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ ना, देखो हॉवर यहाँ ऊपर दिख रहा है ना, क्योंकि वो सिलेक्ट हो रहा है। अब मैं बटन एलिमेंट खोल लेता हूँ, ठीक है। देखो मैं हायरार्की में नीचे घुसता चला जाऊँ, ये दिख रहे हो ना। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। यस सर, यस सर। बोरिंग लग रहा है क्या? नो नहीं सर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट मॉडल अगर तुम समझोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअली में कि आपके HTML के साथ हुआ क्या। HTML को लिया, तुमने ये सारी चीजें लिखी नहीं थी, लेकिन जावा ब्राउजर ने क्या किया, उसको पार्स करते टाइम उसका ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट कर दिया, राइट। HTML को रीड करके उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में तुमने लिखा था अपना HTML, एक स्ट्रक्चर्ड वे में कि HTML के अंदर हेड है, बॉडी है, बॉडी के अंदर 3 और एलिमेंट है, उसी हिसाब से उसने सारे एलिमेंट को, एक एलिमेंट उठाया। देखो तुमने सिर्फ बटन एलिमेंट लिखा था, राइट, इतना लिखा था बटन, उस बटन एलिमेंट को खोलो तो उसमें उसने क्या क्या डाल दिया, उस बटन एलिमेंट के अंदर उसने देखो 50 से एट्रीब्यूट डाल दिए, एरिया बिजी, एरिया लेबल, एरिया लेवल, बहुत चीजें डाल दी, राइट। कि किसी झोले में देखो था वो। ऑटो फोकस, इसके चाइल्ड एलिमेंट काउंट है कि नहीं है, क्लास उस पर कोई दिया नहीं है, तो उसमें आईडी पे कोई वैल्यू होगी डेफिनेट। अब देखो मैं आईडी पे फोकस कर रहा हूँ, तो देखो मैं इस तरीके से भी एक्सेस कर सकता हूँ, ये देख रहे हो हॉवर करने पे, डॉक्यूमेंट डॉट कितने चिल्ड्रन, जीरोथ चिल्ड्रन एरे होगा, चिल्ड्रन एरे में 0 एलिमेंट, जीरोथ पे HTML होता है, राइट। फिर जीरोथ पे HTML के बाद उसके 1th पे बॉडी होगा, बॉडी के बाद फिर पहले पे उसका बटन होगा, और ये ऐसे इस तरीके से तुम इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो, राइट। अब आईडी का नाम दिख रहा है माई बटन, परफेक्ट। अब देखो इस पे ना, इस पे कुछ न कुछ ये मेथड्स कहाँ से आ गए, ऑन लोड, ये आपके इनहेरिटेड मेथड्स हैं, ये आपको वो डाल के देता है। अब रिमेनिंग जो मेथड होंगे ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह वगैरह, ये आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे मेथड है। देखो अभी इसके प्रोटो में खोजो, अब इस प्रोटो में बहुत कुछ मिलेगा आपको, जो मेथड अपडेट नहीं मिल रहे थे, गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह, राइट। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट क्या करता है, मतलब सॉरी ब्राउजर क्या करता है, आपके HTML को, अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आपके डिटेल को पढ़ता है HTML में, और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, जिसमें टॉप लेवल का होता है। अगर मैं बोलूँ टॉप लेवल पे आपका हो गया, अगर मैं इसे क्लीन करूँ, अब मैं डॉक्यूमेंट के अगर मैं चिल्ड्रन प्रिंट करता हूँ तो कितने आते हैं, HTML कलेक्शन सिर्फ एक आया, राइट। डॉक्यूमेंट चिल्ड्रन डॉट लेंथ किया तो कितना आया, एक। अगर मैं एरे है, अगर लेट्स से ये एक एरे है और एरे का मैं 0th इंडेक्स निकालता हूँ तो HTML आया, 1th में अनडिफाइंड हो जाएगा, तो एक ही एलिमेंट है उसमें, राइट। तो 0th इंडेक्स पे HTML आया, और उसके बाद फिर से मैंने उसका चिल्ड्रन किया तो कितने आए, सॉरी देखो 2 आया, लेंथ निकालो इनकी, 2 आएगा, राइट। अगर मैं इसको उड़ा के इसके, अगर मुझे बॉडी में जाना है, अगर मैं 0 दूंगा तो ये हेड में जाएगा, 1 करा तो मैं बॉडी में चला जाऊंगा, बॉडी में जाके मैंने बॉडी के भी चिल्ड्रन निकाले, देखो इसमें 0 पे P है, 1 पे बटन है, और 2 पे क्या होगा, स्क्रिप्ट टैग होगा, क्योंकि 3 एरे में 3 एलिमेंट है। एट एनी मोमेंट अब मेरे पास उस चिल्ड्रन का इंस्टेंस मिल चुका है मुझे, राइट। अगर देखो, अगर मैं ये एंटर मारूं तो ये क्या है, ये मेरे चिल्ड्रन वो तीनों तीनों मुझे मिल चुके हैं। एनी मोमेंट पे मैं क्या कर सकता हूँ,
जीरो पे मैं पी पे एक्सेस हुआ, पी DIR पहुंच बोला चुका था हूँ ना, आपने लॉक किया है। पी का मैं इनर एस्टीमल निकालता हूँ। सी पी का मैं, अब कैसे तुम्हें पता कि तुम पी का क्या क्या निकाल सकते हो? तुमने एंटर किया, ये देखो ये आया। अब इसी चीज को तुम क्या कर लो, कॉपी करके इसको console.dir में चलाओ, तुम्हें पता चल जाएगा क्या क्या निकाल सकते हो तुम, कौन कौन से एट्रीब्यूट अवेलेबल है। दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्यूमेंटेशन आपको ये कंसोल खुद देता है। बस आपको क्या करना है, इस कंसोल को चलाना सीखना है। आई थिंक ये ऐसे नहीं चलेगा, एक्स पाथ कॉपी करना पड़ेगा मुझे, सॉरी। एटलीस्ट कुछ लोग हैं जो बड़े ध्यान से देख रहे हैं। टाइपिंग में वो यार हमेशा दिया लॉग करते हैं ना हम लोग, तो यस सी अभी DIR पे आ गए आप। अब देखो ये आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो हेमंत समझ में आया ना कि क्या करना है, रटना नहीं है कि इनर एस्टिमल क्या है। एक एलिमेंट अगर ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट पे क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। देखो आईडी उसका कुछ नहीं है, आपको क्या देखना है, इनर एस्टीमल देखना था, आई से होगा। सो इनर एस्टीमल और इनर टेक्स्ट सेम है। अगर लेट से मैं पी में जाके मैंने कुछ ऐड कर दिया, लेट से दिस, पी में जाके मैंने एक स्पैन ऐड कर दिया, राइट। अब मैं अगर ये रिफ्रेश करता हूँ और मैं फिर से डॉक्यूमेंट डॉट चिल्ड्रन के जीरो पे डॉट अगेन चिल्ड्रन के वनथ पे जिसमें बॉडी होगा डॉट चिल्ड्रन, राइट। अब देखो मुझे आप बटन पे जाना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट अगेन जो ऊपर लिखा है चिल्ड्रन के जीरो पे। अभी हम इसी को स्टडी कर रहे थे, इसको मैंने कट किया, सिमेंटिक नहीं होगा, कंसोल, राइट। सी अब देखो इसका इनर एस्टीमल क्या था, बदल गया ना इनर एस्टीमल। और देखो वो सेम स्पेस के साथ है जितना स्पेस तुमने अपने एडिटर में दिया, तो मतलब बेसिकली हम राइट। लोग ये समझ सकते हैं, इनर मतलब जो एचटीएमएल में तुम वैलिड एचटीएमएल DOM है इंसर्ट कर मतलब सकते हो इसका रन टाइम बिहेवियर में। एरे की तरह अगर होगा। देखो लेट से अगर हम लोग मुझे यही समझने की रन टाइम में आई एम स्पैन दिख रहा है तुमको, अगर मैं उसमें एक डिव इंसर्ट करना चाहता तो मैं क्या कर नहीं, इसको सकता हूँ? एक्सेस करने के लिए आंसर इज एरे यस, का यू कैन। यूज, मतलब जैसे कि हम लोग उसका इंडेक्स करते हैं तो उतने एरे वाले आते हैं, फिर उनके इनर टेक्स्ट, उनका इनर एचटीएमएल सब आ जा रहा है। और है तो ऑब्जेक्ट ही, एरे भी तो सर ऑब्जेक्ट है। सिमेंटिकली गलत है, मैं केवल तुम्हें ये मैनिपुलेशन दिखा रहा हूँ, सिमेंटिकली गलत है। मैं जब वो HTML CSS पढ़ाऊंगा ना तो उसमें आई विल टीच यू कि किस टाइप के एलिमेंट को किस टाइप के एलिमेंट में डालना चाहिए हमें, ठीक है। इनर यस सर। एरे की तरह नहीं, ऑब्जेक्ट की तरह। एरे की तरह नहीं, ऑब्जेक्ट की तरह। डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है आपका, देखो ऐसा नहीं है ना ना, वो अलग बात है, वो अलग बात है। डॉक्यूमेंट, अगर तुम डॉक्यूमेंट प्रिंट करो, फिर से मैं दिखाता हूँ, हम उसकी किस प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं। हम उसकी प्रॉपर्टी जो है वो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन एक एरे है। अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, ये डॉक्यूमेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तभी तो उसमें इतनी प्रॉपर्टीज हैं। हमने उसके चिल्ड्रन को खोजा। अब चिल्ड्रन हमेशा, चिल्ड्रन एक प्लूरल है, प्लूरल एक एरे ही होगा, राइट। लेकिन अगर हम उसके चाइल्ड एलिमेंट से जाते तब तब हमको ऑब्जेक्ट मिलता। क्वेश्चन मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ये है कि तुमको ना एलिमेंट समझना है कि कौन सा कैसे एलिमेंट रीच करना है। ये जो तरीका है ये बहुत इनएफिशिएंट है, आप ऐसे नहीं करते। तो जो डॉम के डेवलपर तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला ऐसा है तुम ये करो कि तुमको मैं ना सिलेक्टर्स देता हूँ, सिलेक्टर, ताकि तुम एलिमेंट को डायरेक्टली सेलेक्ट कर पाओ। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को सेलेक्ट ही तो कर रहे हैं खोज खोज के कि वो 0th 1 है, राइट। अब मान लो किसी ने आके ये थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, कोड में ऊपर नीचे कर दिया, तो तुम्हारा सिलेक्टर फट जाएगा। पी ऊपर
की जगह नीचे कर दिया, तो वो 0 पे जो था, ये एलिमेंट 0 पे था, वो 1 पे आ जाएगा, और ये बटन 1 से 0 पे चला जाएगा। तो क्या ये एफिशिएंट तरीका है? नहीं। तो उन्होंने बोला ऐसा है, तुम सिलेक्टर यूज करो। सिलेक्टर मतलब CSS सेलेक्टर, चाहे तुम आईडी से कर लो, चाहे तुम क्लास से कर लो, एट्रीब्यूट से कर लो, ताकि तुमको कभी उनका पोजीशन याद ना करना पड़े। तुम यहाँ पे देखो तो तुम यहाँ पे पोजीशन याद कर रहे हो कि वो 0 पे है, ये 1 पे है, ये 0 पे है। DIR कर देंगे। इनकी इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने खुद दी। कैसे कर सकते हैं हम? अगेन जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने वो किया था ना, माई बटन, राइट। माई बटन को अगर हम ऐसे यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट ये, तो जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड है, वैसे गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम भी मेथड है, राइट। नॉट डॉक्यूमेंट, माई बटन। अब 2 मिल गया आपको। अब आपको कैसे पता चल रहा है कि इस एलिमेंट पे क्या क्या है? इस एलिमेंट पे कैसे कैसे पता चलेगा? हाँ, इसको DIR कर लो। ठीक है, अगर लेट से मुझे देखो यहीं से मैं अगर चाहूँ तो मैं इस एलिमेंट का टेक्स्ट बदल सकता हूँ। कैसे? मैंने टेम्प में स्टोर कर लिया उसको। इनर टेक्स्ट जो है ना, मैंने क्या लिया, मैंने बोला देखो, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डॉम मैनिपुलेशन। मैंने डॉम को बदल दिया जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट है सिंपली, ठीक है। मेरे पास पावर आया, मैंने जावास्क्रिप्ट से डॉम को बदल दिया। अब देखो, अगर लेट से मैं कुछ ऐसे लिखता, मैंने एक फंक्शन लिखा था जिसमें क्या करना है वो सॉरी डेट होता है time। चलो मान लो मैं इसको जस्ट टू जनरेट सम डायनेमिक थिंग, राइट। वो डायनेमिकली उसका टेक्स्ट, क्योंकि आपको कई बारी डॉम को डायनेमिकली बदलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सर्वर का रिस्पॉन्स आता है, आपको उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे चीजों को डायनेमिकली बदलनी पड़ती है, राइट। अब देखो देखो मैंने क्या किया, इनर टेक्स्ट लिया और मैंने एक फंक्शन में डाला और ये डाल दिया, ठीक है। सॉरी माय बैड, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा ना। ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, मुझे इसको IIFE बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सिंटैक्स क्या है IIFE, अभी जस्ट फॉरगेट इट, वो हमने अभी कवर नहीं। देखो मैं जितनी बार चलाता जा रहा हूँ वो एलिमेंट बदलता जा रहा है। कैसे? क्योंकि हमने क्या किया है, हमने जावास्क्रिप्ट से डॉम डॉम को कंट्रोल कर लिया। ये तुम्हारा डॉम था, देखो मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूंगा, देख रहे हो यहाँ पे ये बदल गया। क्या तुमने ये चीज यहाँ बदली है? यहाँ तो क्लिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्यों बदल रहा है? क्योंकि तुमने उसकी इंटरप्रेटेड वैल्यू में चेंज कर दिया। मैंने बताया तो ना कि HTML इज नॉट डॉम। ब्राउजर टेक्स योर HTML एज इनपुट, HTML को लेके वो उसको पार्स करता है। पार्स करके जो एक ऑब्जेक्ट मॉडल का ट्री स्ट्रक्चर बनता है ना, ये ट्री स्ट्रक्चर है ना, तो वो नीचे उसका भी रेफरेंस दिख रहा है तुम्हें। HTML के अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर बटन जिसका ID माई बटन, वो मैं सेलेक्ट कर रखा है। ये ट्री स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डॉम। और डॉम के साथ एक ऐसा इंटरफेस मिलता है ताकि आप जावा स्क्रिप्ट से उसको इंटरेक्ट करा सकें। आपको बेसिक मेथड्स मिल जाते हैं, और सिर्फ जावा स्क्रिप्ट कैन टॉक टू डॉम। बाकी दुनिया की कोई लैंग्वेज अभी तक इजाद नहीं हुई जिसका डॉम से जो बात कर सके, राइट। और क्यों करना है हमें डॉम से बात? अभी देखो सारी चीजें, सारी कड़ियां जुड़ गई इस सेशन की, ताकि हम JS इवेंट्स लगा सकें। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ऑन क्लिक मेथड लगाया था, राइट। देखो ऑन क्लिक मेथड लगाया हमने रन टाइम में। हम जैसे यहाँ से कंसोल से चेंज कर रहे हैं, हम कंसोल को ऐसे ही लो कि कहीं से भी चेंज कर लिया, किसी दूसरी जावास्क्रिप्ट फाइल से चेंज कर लिया, तो हमने वो चेंज भी कर लिया, डॉम मैनिपुलेट हुआ। अब जैसे लेट से
अब मैं यहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन लिखूँ कि जब ये एक्सटर्नल जेएस में क्लिक हो ना, क्लिक हैंडलर, तो जो उसका टेक्स्ट हो वो टेक्स्ट प्रिंट करो। क्या लिखूंगा मैं? दिस डॉट इनर टेक्स्ट। अब यहाँ पे दिस किसको पॉइंट कर रहा है? किस ऑब्जेक्ट को दिस पॉइंट कर रहा है? करंट ऑब्जेक्ट को। करंट ऑब्जेक्ट मतलब वो बटन ऑब्जेक्ट। तो सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, बॉडी, हेड। बॉडी के अंदर तीन ऑब्जेक्ट, बटन। बस उनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं वो डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट, बस उनकी प्रॉपर्टीज अलग है। प्रॉपर्टी मतलब कोई हो सकता है बटन हो जिसका डिस्प्ले टाइप बटन है, राइट, वो बटन की तरह दिख रहा है, लेकिन उस पर भी ऑन क्लिक चलेगा, उस पर भी एट्रीब्यूट्स होंगे। तो इनर टेक्स्ट, इनर एचटीएमएल, ये सारे एट्रीब्यूट सारे ऑब्जेक्ट में मिलेंगे, राइट। मैंने दिस डॉट इनर टेक्स्ट किया, ठीक है। अब मैं ये कोड कॉपी भी कर लेता हूँ, ये चला जाएगा। देखो अभी मैंने क्लिक मी किया और उसने क्लिक मी प्रिंट कर दिया, क्योंकि इसका इनर टेक्स्ट वही है, लेकिन सेम तरीके से मैंने अभी बताया था डॉक्यूमेंट डॉक यहाँ लिख के एक और बड़ा आसान तरीका है, किसी को बताइए? यहाँ जाओ, कॉपी करो, कॉपी जेएस पाथ में आओ और यहाँ प्रिंट कर लो, ठीक है। अब डॉट इनर टेक्स्ट लगा लो, ठीक। और वो मेथड लिख लो, लेट्स से क्या था वो, न्यू डेट। ये जस्ट टू, मैंने ये डेट, क्या डेट हमेशा हर सेकंड बदलती रहती है ना, तो ये रैंडम आएगा तो तुम लोग देख पाओगे, इस वजह से मैं ये लिख रहा हूँ, इसका कोई और सिग्निफिकेंस नहीं है। गेट टाइम कर लेते हैं इस बार, सॉरी, अच्छा मैंने कॉल नहीं किया, ठीक है। देखो मैं जितनी बार करूंगा बदल जाएगा। अब देखो एक मैं ये क्लियर कर रहा हूँ, मैंने एक बार बदल दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये प्रिंट हो गया। अब तुमने देखा ये हर बार मैंने रैंडम हो जावा जाएगा। स्क्रिप्ट से डॉक्यूमेंट बदला, डॉक्यूमेंट जो बदला हुआ है वो खुद देख सकता है, और फिर मैंने जावा स्क्रिप्ट में वो बदला हुआ डॉक्यूमेंट अचीव कर लिया। पूरा का पूरा एक सर्कल है। वो इंटरफेस कहाँ से मिला? मतलब जावा स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट को बदल सकता है, और जो बदला हुआ डॉक्यूमेंट है वो उसे वापस मिल भी सकता है। तो देयर आर वेज। वो इंटरफेस किसने क्रिएट किया? वही आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ने ही वो इंटरफेस क्रिएट किया कि जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल आपस में बात कर सकें, राइट। यहाँ तक क्लियर है? हेलो? यस सर। मुझे नहीं लगता किसी को क्लियर है। पीपल आर आइदर स्लीपिंग और नॉट इंटरेस्टेड। हर बार अलग अलग आएगा एज इन ये नंबर। सेकंड चेंज। अरे ये तो टाइम चेंज है ना ब्रदर, आपका टाइम तो चल ही रहा है ना। ये जो न्यू डेट फंक्शन है वो आपके कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर का टाइम होता है ना, ये उसको, इसका आईएसओ स्ट्रिंग है, मतलब ये 1970 से ये टाइम चल रहा है, ठीक है। और ये हर सेकंड बदलता रहता है, अगर आप देखोगे ना ये हर सेकंड बदलेगा। ये मिली सेकेंड्स हैं उसके बेसिकली, तो एक बार में ये 1000 बार चेंज हो चुका होता है। जस्ट टू, अरे यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करता, बार बार मुझे चेंज करना पड़ता है ना। मैं यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कर सकता हूँ। मैं ये चलो फैंसी सा चीज में लिख के मैं बार बार, लेकिन मुझे टाइप करना पड़ता है हेलो शुभ। ये देखो मैं क्लिक करूंगा तो मुझे हेलो शुभ मिल जाएगा। फिर मैं यहाँ लिख सकता था हेलो राम, राम, लेकिन ये थोड़ा सा इनफिशिएंट वे होता है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया कि ऐसा करते रहो। तो पॉइंट यहाँ पे ये है, मतलब डो नॉट फोकस ऑन दिस। ये तो मतलब जस्ट वैल्यू है कि आप वैल्यू कुछ भी दे सकते हो इनर टेक्स्ट चेंज करने के लिए। पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ कि तुम डॉम मैनिपुलेट कर पा रहे हो, ये समझ में आया। और जो मैनिपुलेटेड डॉम है उसको फिर से तुम रीड कर सकते हो कि क्या मैनिपुलेशन हुआ। यही पावर आपको जो मिलती है ना, ये जावास्क्रिप्ट और डॉम के बीच में, ये डॉम आपको बना के देता है, ये पावर इंटरफेस बना के देता है कि आप ये कर पाओ। इंटरफेस का क्या मतलब होता है? जैसे आपके फोन में आपका जो स्क्रीन है, टच स्क्रीन फोन में, वो स्क्रीन आपका एक इंटरफेस है, आप उस पर इनपुट दे सकते हो। इन द सेम वे एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट के बीच में ये जो डॉम है, ये एक इंटरफेस है जो कि आपको बात करने की पावर देता है एचटीएमएल एलिमेंट्स से, अदरवाइज आप कर नहीं पाते। तो ये ब्यूटी, और इसके बिना देयर इज नो मीनिंग। मतलब
आप जावास्क्रिप्ट लिख लो, लेकिन आप अगर कुछ दिखा ही नहीं सकते, वो कैसे करोगे? अब चलो अब कुछ लॉजिकल करते हैं, ठीक है? ये तो अभी तक जस्ट टू शो थिंग्स था। चलो हम एक फंक्शन लिखी, हमें सेकंड्स दिखाएगा, जब भी वो चलेगा तो कितने सेकंड तक चला वो फंक्शन, टाइमर दिखाएगा, शो टाइमर, ठीक है? इसके लिए हम दो बटन बनाएंगे, सिंपल सा। आई वुड जस्ट comment it out. Okay, this is our timer. Let me create it as a div, क्योंकि अभी ये नाराज हो जाएगा, बोलेगा अभी शिवान से अभी किसी ने तो बोला था ना सिमेंटिकली करेक्ट नहीं है। चलो अभी इसको सिंप्लीफाई रखते हैं, ये तुम्हारा स्टार्ट बटन रख देते हैं इसको, राइट? और यहाँ पे रखते हैं इसको स्टॉप बटन, टाइमर स्टार्ट एंड स्टॉप करने का। कूल। सेम वे यहाँ पे हम टाइमर को डिस्प्ले करने का एक पैराग्राफ बनाते हैं, इसकी भी आईडी ही दे देते हैं अभी के लिए, डिस्प्ले टाइमर। कूल। अब इस चीज के लिए हम कोडिंग करते हैं इधर कि जैसे स्टार्ट टाइमर के लिए एक फंक्शन होगा, राइट? और एक स्टॉप टाइमर के लिए फंक्शन होगा। टाइमर को हम 0 पे इनिशियलाइज करेंगे, जब स्टार्ट होगा तो हर सेट इंटरवल क्या करता है, आपके एग्जीक्यूट कोड को, आपको उस पोर्शन ऑफ कोड को जो कि आप इसमें फंक्शन देते हो, जैसे मैंने क्या फंक्शन दिया ना, ये एनोनिमस फंक्शन, इसको गिवन इंटरवल पे चलाता है, तो और ये एमएस होता है, तो 1 सेकंड पे चलाएगा इसको। ये हमको टाइमर को क्या करना है, +1 कर देना है, ठीक है? हर 1 सेकंड बाद ये 1 बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपका इंटरवल ये है, ठीक है? अब जब ये इंटरवल को रोकने के लिए आपको यहाँ पे आई थिंक कैंसिल इंटरवल करके करना होता है, क्लियर इंटरवल होता है, लेट मी सी, क्लियर इंटरवल होता है, आपको ये वेरिएबल देना पड़ेगा और ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बस मतलब सेट इंटरवल क्या करता है, उस इंटरवल पे उस फंक्शन को चलाएगा, राइट? स्टार्ट बटन आपका जो है, उस पे आपको स्टार्ट टाइमर का हैंडलर डालना है, स्टॉप पे आपको स्टॉप टाइमर डालना है, राइट? लेट्स सी वर्क्स और नॉट। I think it seems fine. हाँ, cool. So people would have must be thinking ये काम क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने रीड नहीं किया, वहाँ पे हमने डिस्प्ले नहीं किया। अब हमको डिस्प्ले भी तो करना है, तो every time as soon as code loads, मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा डिस्प्ले टाइमर, राइट? यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे, डिस्प्ले टाइमर को, जो भी हमारा टाइमर वेरिएबल है उसका हम इनर टेक्स्ट, राइट? यूज ऑफ इनर टेक्स्ट हम यहाँ पे टाइमर वेरिएबल से ओवरराइड कर देंगे। सिंस जैसे ही कोड चले तो बाय डिफॉल्ट एक बार ही हमको क्या करना है, वो डिस्प्ले दिखाना ही है डिफॉल्ट वैल्यू के साथ, तो हमने उसको एक बार ही कॉल कर दिया तो 0 दिख गया, राइट? स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। नथिंग हैपेंड, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, क्योंकि हमने ये मेथड यहाँ पे डिस्प्ले को दोबारा कॉल नहीं किया, राइट? सी, तो हमें क्या करना होगा, ये जो डिस्प्ले टाइमर है, एवरी टाइम ये इंटरवल में जब +1 हो जाए तो हमको इसे कॉल करना पड़ेगा। परफेक्ट, राइट? स्टॉप करने पे ये रुक जाना चाहिए। या हियर वी गो। अब इस कोड का एक्सप्लेनेशन कौन करेगा?
किसको इसमें क्या क्या चीज है, कैसे चल रही है, इसका एक्सप्लेनेशन कौन करेगा? लेट मी कॉल रणधीर, explain this code. Hello Ranveer, can you hear me? अभी मैं इधर ध्यान नहीं दे रहा था सर, अच्छा तो कोई आई एम नहीं, सॉरी फॉर दिस। no worries. Okay, Shweta, would you go ahead? She drop. विशाल, करोगे इसे एक्सप्लेन, ये कैसे काम किया, क्या किया हमने यहाँ पे? ये इंटरवल छोड़ दो, ज्यादा मत समझो, इंटरवल का मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी पोर्शन ये कैसे दिख रहा है, ये डॉम मैनिपुलेशन। जैसे हमने रिफ्रेश किया, स्टार्ट किया, अब मैं एलिमेंट्स दिखाऊं तुमको, देखो ये बार बार देखो, ये एलिमेंट्स री रेंडर हो रहा है। रेंडर मतलब होता है ड्रॉ होना, कैसे री रेंडर हो रहा है। एनीवन ऑफ यू वुड लाइक टू explain this piece of code, how it is working? 18 सेकंड बीत गए, 19 सेकंड, और नो वन हैज आंसर्ड। अभी यस सर। सर पहले हमारे पास दो बटन है, एक स्टार्ट है, एक स्टॉप है, और दोनों पे हमने इवेंट लगा के रखा हुआ है। तो सर जब स्टार्ट को प्रेस कर रहे हैं तो फिर वो ऑन क्लिक का एक मेथड है, जो कि मतलब सर एक इंटरवल भी हमने सेट किया हुआ है हर एक सेकंड के लिए। तो हर एक सेकंड पे सर डिस्प्ले टाइमर कॉल हो रहा है, और डिस्प्ले टाइमर कर रहा है कि सर वो सर एलिमेंट को बाई आईडी गेट कर रहा है और उसके इनर एचटीएमएल को चेंज कर रहा है टाइमर से, मतलब और टाइमर को बेसिकली हम अगर हम लोग बार console बार dot इंक्रीमेंट code कर रहे हैं करेंगे 1 तो से। कंसोल पे प्रिंट होता है, और डॉट इनर टेक्स्ट कर देते हैं तो वो वेबसाइट पे, मतलब पूरे वेब पेज पे होता है। यस, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी से हमने वो दोनों एलिमेंट्स निकाले, उन पे दो अलग अलग। हेलो सर। हाँ सर ये फंक्शन में डिस्प्ले टाइमर में जो सर डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी, सर इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू टाइमर, ये लाइन एक्सप्लेन करिए। हाँ, तो देखो मैंने अभी कंसोल से भी दिखाया था ना कि इनर टेक्स्ट करके तुम कुछ भी चेंज कर सकते हो उसका। ओके सर। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे अब जैसे अगर मैं लेट से मैं स्टॉप कर देता हूँ इसको, ठीक है, यस सर। फिर से डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके मैं देखो वहां से चेंज करना चाहूंगा। तुम, यही तो जावास्क्रिप्ट की पावर है। अगर मैं लेट से यहाँ पे मैंने कुछ भी कर दिया, लेट से आई टाइप समथिंग, वो समथिंग हो जाएगा, राइट? यस। तो ओके। ये कोड क्या कर रहा है, वेब पेज पे नहीं ब्रदर, ये इनर टेक्स्ट तुमने अभी ऑब्जेक्ट को अपने दिमाग में बिठाया नहीं है। ये डॉट ऑपरेटर है, तो इसका मतलब ये जो पोर्शन होगा ये ऑब्जेक्ट होगा एक। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये एलिमेंट में आ जाओ, ये वाला ये ऑब्जेक्ट है, राइट? ये मैंने अभी तुम्हें कैसे दिखाया था, देखो ये, इसको करो कॉपी। ये चीज तुमको बिल्कुल एकदम दिमाग में घुस जानी चाहिए कि ऑब्जेक्ट मॉडलिंग काम कैसे करती है। देखो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इतनी प्रॉपर्टीज हैं, इसमें इनर टेक्स्ट भी एक प्रॉपर्टी होगी, देखो, है ना? अगर मैं इस इनर टेक्स्ट को जहां से चेंज कर दूं तो क्या ये वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगा? यही तो देखो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या कहता है कि आप मेरे ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज करो, मैं ब्राउजर के स्क्रीन पे वो चीज रिफ्लेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं उसी का इंटरफेस हूँ। तो समझो, मतलब जैसे अगर लेट से आपके पास एक मशीन है, वॉशिंग मशीन ही है, वॉशिंग मशीन आपको क्या कहता है कि आपके पास एक बटन है, आप उसे प्रेस करो, वो आपके कपड़े धुल देगा। कैसे धुलेगा, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें आपको नहीं दिमाग लगाना, सिर्फ आपको वो बटन ऑन ऑफ करना है, तो वो बटन उसका इंटरफेस है। तो इस केस में हमारा जो मशीन है वो ब्राउजर है, कि ब्राउजर, और वो कर क्या रहा है, वो चीजों को दिखा रहा है यूजर को यहाँ पे, राइट? रेंडर कर रहा है। क्या रेंडर करना है, उस चीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो इसके इंटरफेस से। वो इंटरफेस क्या है, वो डॉम, जिसका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, क्योंकि तुमको उसके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से बात करनी है तो तुम जावास्क्रिप्ट से बात कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट में ये कैसे कर सकते हो कि उसने ये एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू चेंज करते रहो, प्ले अराउंड देम, और वो चीजें रिफ्लेक्ट करती रहेगी। तुमने इसमें चेंज किया तो बेसिकली तुमने डॉक्यूमेंट में चेंज किया, डॉम में चेंज किया, लेकिन ब्राउजर में नहीं चेंज किया। ब्राउजर में कौन चेंज कर रहा है, वो डॉम का जो कोड लिखा हुआ है वो चेंज कर रहा है। तो तुमको ध्यान किस पे रखना है, सिर्फ डॉक्यूमेंट पे।
यहाँ पे तो अपने आप वो चेंज हो जाएगा क्योंकि वो डॉक्यूमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ गए? हेलो, यस सर। मतलब आपका ये जो ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर है, ये आपका मेन ऑब्जेक्ट है। HTML के ऊपर डॉक्यूमेंट होता है, मैंने दिखाया 2-3 बारी, राइट? वो आप थोड़ा सा और डिबग करना, आपको समझ में आएगा। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, ये स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बन चुका है, रखा है। तो आपने जब गेट एलिमेंट बाय आईडी किया तो आपको ये ऑब्जेक्ट मिला। अब इस ऑब्जेक्ट में मैं क्या चेंज कर सकता हूँ? इसका इनर टेक्स्ट चेंज करूंगा तो ये चल जाएगा। स्टार्ट करने पे वो चीज देखो, वो वेरिएबल फिर से वहीं से उसने ओवरराइड कर दिया उस वेरिएबल, राइट? ये वेरिएबल प्रिजर्व कैसे है? क्योंकि ये वेरिएबल देखो, इस चीज की, इन तीनों फंक्शन के लिए वेरिएबल क्या है? ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि उसके बाहर डिक्लेयर्ड है, राइट? इस वजह से वो तीनों फंक्शन में मिल रहा है, किसी का लोकल वेरिएबल नहीं है। function एक पंखा बंद कर, मग गरम हुई चली चाय